Hello, good morning class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the fifth chapter of your textbook First Flight. The chapter entitles The 100 Dresses, written by Al Basur Easter, a Polish writer. Before you read, let me read the introductory paragraph of this chapter. How we judge the people around us. Now, we live in society. We judge people on certain backgrounds. What kind of dresses is worn by that particular person? How much wealth is possessed by that particular person? What is the standard of living of that particular person? Okay. So, in this way we judge a person. So, how do we judge the people around us? हम हमारे चारों तरफ जो लोग हैं उनको उनको कैसे जज करते हैं, मतलब उनके बारे में कैसे ये निर्णय लेते हैं कि वो किस सामाजिक स्तर का धनवान है या गरीब है या मध्यम वर्गीय, बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन। उसके बाद क्या पैसा, कितना पैसा है, कितनी धन संपदा है और किन किन चीज़ों का स्वामित्व है, किन किन चीज़ों का मालिकाना हक उसके ऊपर है, राइट। और is there something of more enduring value to look for in a person? और इसके अलावा कोई ऐसी विशेष चारित्रिक विशेषता जो उस व्यक्ति विशेष के अंदर मौजूद है, उसके आधार पर भी उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो ये चारित्रिक विशेषता, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो दूसरों को कोई काम करने के लिए कहते थे, पहले वो स्वयं उस काम को करके देखते थे, राइट। दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये कहानी एक भावनात्मक विवरण है, ठीक है, कि कैसे एक गरीब परिवार से संबंधित बालिका का मूल्यांकन के बारे में राय बनाई जाती है उसके क्लासमेट्स यानी कि सहपाठियों के द्वारा। वांडा पेट्रोन्स्की is a young Polish girl, goes to school with other American children in an American town. वांड्रा पेट्रोन्स्की एक पोलैंड में रहने वाली लड़की है जो कि जाती है स्कूल उसके दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ अमेरिका के एक कस्बे में। These other children see Wanda as different in many ways. तो ये जो अमेरिकी बच्चे थे उन्होंने देखा वांडा को कि वो कई तरीक़ों से उन अमेरिकी बच्चों से भिन्न थी। वांडा पेट्रोन्स्की was a Polish girl, was different, having a lot of differences in comparison to the American children. Can you guess how they treat her? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो अमेरिकन चिल्ड्रन जो थे उन्होंने किस प्रकार का व्यवहार इस पोलैंड की लड़की वांड्रा पेट्रोन्स्की से किया? इन what kind of treatment was given by American students to their classmate Wanda Petronsky, who was a Polish girl.
Now read the information in the box below. Find out more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. Encyclopedia, book having knowledge of various subjects. Before this word, there was one word possession, means things owned by a particular person. Okay, and encyclopedia means book having knowledge of various branches, right? So you have to read out the information which are given by the author here in this box. And if you want to know about this Polish community or about a related topic, you have to just consult encyclopedia. Or if you don't want to consult encyclopedia, you can just inquire about Polish culture, people living in Poland by taking information from the internet. Okay? The Polish American community in the United States. The basically origin of Poland people who later on migrated to America. So let us have some information regarding the Polish American community in the United States of America. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. पहले पोलैंड के प्रवासी अमेरिका पहुँचे, राइट, 1608 में, राइट. So Polish people they migrated from Poland to America in the year. The first Polish immigrant arrived in America in the year 1608. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States. लेकिन सबसे बड़ी मात्रा में पोलैंड के लोगों ने अपना प्रवास जो है यानी कि स्थानांतरण पोलैंड से अमेरिका में वो स्थानांतरित हुए, इमिग्रेट हुए प्रवासी पोलैंड के लोग प्रवासी यानी अमेरिका में जाकर प्रवास करने लगे. तो ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बड़ी मात्रा में पोलैंड के निवासी अमेरिका प्रवास कर गए. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to the country of origin rather than to ethnicity. Ethnicity means related to human race. तो उस समय अमेरिका में कोई पॉलिश स्टेट नहीं था. पोलैंड के रहने वाले लोगों के लिए कोई विशेष राज्य उस समय तक अमेरिका में नहीं था अस्तित्व में. And time and immigrants were identified according. Okay, so about more than 1 million Poles migrated to United States. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो है वो लगभग 10 लाख से भी अधिक 1 million = 10 lakh 10 लाख से भी अधिक पोलैंड वासी जो है अमेरिका प्रवास करने के लिए चले गए. द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम. उस समय अमेरिका में कोई पोलैंड के लोगों के लिए विशेष राज्य नहीं था. एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू इथेनिसिटी. तो उस समय पोलैंड के प्रवासियों की पहचान की जाती थी उनके उत्पत्ति के देश के आधार पर कि जहाँ से
उनका ओरिजिन हुआ है बनिस्बत उनकी विशेष मानव जाति से संबंधित। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। तो उनकी पहचान जो है रूस में रहने वाले पॉलिश पीपल, जर्मन के पॉलिश पीपल या फिर ऑस्ट्रिया के रहने वाले पॉलिश पीपल। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। तो सबसे ज़्यादा गौर करने वाले पोलैंड निवासी जो अमेरिका में जाकर बस गए, मुख्य रूप से शिकागो में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। सबर्ब्स मीन्स आउटस्कर्ट एरियाज। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को विश्व की सबसे दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है पॉलिश लोगों के लिए। नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, यानी कि सबसे जो पोलैंड की राजधानी वार्सा, वो सबसे बड़ा पॉलिश लोगों का शहर है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका का शिकागो। ओके, पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज दे वर आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज। तो पॉलिश अमेरिकन लोगों के साथ कभी कभी भेदभाव किया जाता था। डिस्क्रिमिनेटेड यानी भेदभाव करना अमेरिका में, क्योंकि उनमें से कुछ तो आयरलैंड के रहने वाले, कुछ इटली के, और वो सब लोग यहूदी धर्म को मानने वाले थे, ज्यूज पीपल। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at that time. सेंसस यानी जनगणना अमेरिका में हुई सन 2000 की जनगणना के अनुसार 6,67,414 जो थे अमेरिकन जो 5 साल की अवस्था के थे, एंड ओल्डर, और कुछ बुज़ुर्ग लोग भी, वो पॉलिश लैंग्वेज को घर पर बोलने वाले पाए गए, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। तो अंग्रेजी भाषा बोलने की तुलना में लगभग 1.4% वो पॉलिश भाषा बोलने वाले लोगों की तादाद उस समय अमेरिका में थी सन 2000 में, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का 0.25% जो है पोलैंड वासी थे। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। टुडे, Monday, Wanda Petrowski was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज सोमवार का दिन था, लेकिन वेंड्रा पैट्रोस्की, वो पॉलिश गर्ल, वहाँ उसकी सीट पर कक्षा में नहीं थी स्कूल के अंदर, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि उसकी क्लास में पढ़ने वाली 2 गर्ल्स पैगी और मैडलिन ने भी गौर नहीं किया कि द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन, वो दोनों लड़कियाँ जो कि उस वांड्रा पैट्रोस्की का मजाक उड़ाया करती थी, उन्होंने भी उसकी अनुपस्थिति पर गौर नहीं किया। यानी कि पेगी और मैडलिन ने इस बारे में गौर नहीं किया कि आज वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है वांडा, राइट।
जो कि उसके अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। ओके, यूजुअली Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. सामान्यतया वांडा पेट्रोल्स्की जो थी वो अंतिम पंक्ति में बैठा करती थी, लास्ट सीट के ऊपर, कमरा नंबर 13 में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. तो वो पीछे की रो में, कमरे में कोने में बैठा करती थी, जहाँ पर जो कमज़ोर किस्म के या जो ज़्यादा शैतानी करने वाले बच्चे थे कक्षा के, वो बैठा करते थे। एंड हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, और वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर भी नहीं लाते थे। दे वर एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कल्फिंग ऑफ फीट, ठीक है, तो वो कमरे के कोने में वांडा बैठा करती थी, जहाँ पर अक्सर पैर को घसीट कर चलने की आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती थी। स्कल्पिंग ऑफ फीट मीन्स नॉइज ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि पैर को ज़मीन पर घसीटते हुए चलना। मोस्ट रोड्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, और वहाँ पर अत्यधिक शोर शराबा विद्यार्थियों के हंसने का सुनाई दिया करता था जब कोई मजाकिया बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और कमरे के सबसे लास्ट बेंच के कोने में वहाँ पर ज़्यादा धूल मिट्टी कमरे के फर्श के ऊपर जमा रहती थी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda वहाँ पर नहीं बैठती थी, बैठना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है गंदा सा स्थान था और अत्यधिक शोर शराबा वहाँ पर आया करता था। राइट, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वांडा बिल्कुल शांत स्वभाव की, चुपचाप रहने वाली बालिका थी, जो कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी कभी उसको तेज आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन ए क्रूड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वांडा पेट्रोल्स्की उसके मुंह को इस तरह से मुक्तापूर्ण मुस्कुराहट की भावना उसके चेहरे पर लाती थी, चेहरे को घुमाते हुए इस प्रकार की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती थी जो कि मुक्तापूर्ण थी। दैट वाज ऑल, केवल वांडा के बारे में इतना ही। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वांडा सैट इन दैट सीट। कोई भी बिल्कुल नहीं जानता था कि वांडा वहाँ पर उस लास्ट रो में कोने वाली सीट पर क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली कैक्ड विद ड्राई मड। जब तक कि लोगों को ये मालूम नहीं पड़ा कि वो एक ऐसे स्थान से आती थी, बॉगिंग साइड नामक इलाके से पैदल चलते हुए वो आती थी, और उसके जो पैर थे वो धूल मिट्टी से सने हुए हुआ करते थे, ठीक है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोल्स्की व्हेन शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन कक्षा का कोई भी विद्यार्थी वांडा पेट्रोल्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। एक बार आकर वो कमरे में लास्ट बेंच पर कोने वाली सीट पर आकर वो बैठ जाती थी। क्लास के और दूसरे जो स्टूडेंट्स थे वो उसके बारे में ज़्यादा सोचा विचारी नहीं करते थे।
This time, the time when they thought about Wanda was outside of school hours. वो समय जब कक्षा के विद्यार्थी वंडा के बारे में सोचते थे वो स्कूल समाप्त होने के बाद का समय हुआ करता था. At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. एक समय तो था दोपहर का समय जब वो स्कूल से वर कमिंग बैक टू स्कूल जब वो स्कूल वापस लौट रहे होते थे और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन या फिर सुबह के समय जब स्कूल में क्लासेस प्रारंभ होती थी. When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. जब समूह में 2 या 3 या इससे भी अधिक उसके क्लासमेट्स वांडा के बातचीत किया करते थे, एक दूसरे की बातें सुनकर हंसा करते थे अपने तरीके से स्कूल के मैदान में. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. फिर कभी कभी विशेष रूप से पैगी और मैडलिन और अन्य विद्यार्थी वंडा के आने की प्रतीक्षा किया करते थे कि वो उसके साथ मौज मस्ती या मजाक कर सकें या उसका मजाक बना सकें. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वंडा वॉज नॉट इन स्कूल. अगला दिन जो है वो मंगलवार का दिन था. वंडा उस रोज स्कूल में उपस्थित नहीं थी either and nobody noticed her absence again. और किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वंडा की अनुपस्थिति के बारे में जो है वो गौर करें. बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी who sat down front with other children who got good marks and who didn't drag in the whole lot of mud did notice that Wanda wasn't there. लेकिन बुधवार के दिन पैगी और मैडी जो कि बैठा करते थे फ्रंट रो में दूसरे बच्चों के साथ सबसे अग्रिम पंक्ति में, दोनों ये लड़कियां बैठा करती थी और उनके नंबर भी अच्छे आया करते थे. Who didn't track in a whole lot of mud. और कभी भी वो मिट्टी की धूल भरी पगडंडियों में जो है नहीं जाया करती थी. Did notice that Wanda wasn't there. तो उन दोनों बालिकाओं ने पैगी और मैडी ने इस बारे में गौर किया कि आज वंडा फिर क्लास में अनुपस्थित है. राइट, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे 3 continuous days Wanda was absent in the class. Peggy was the most popular girl in the school. Peggy स्कूल की सबसे लोकप्रिय छात्रा थी. She was pretty and she had many pretty clothes. वो एक प्यारी सी बालिका थी और उसके पास बहुत प्यारे से सुंदर सुंदर कपड़े थे. And her hair was curly. और उसके सर में बाल जो थे वो कर्ली हेयर्स थे, घुंघराले बाल. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी उसकी सबसे पक्की सहेली थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस Wanda's absence was because Wanda had met them late to school. तो वो कारण जिसके तहत पैगी और मैडी ने गौर किया कि वंडा आज क्लास में अनुपस्थित है वो ये था क्योंकि वंडा हैड मेट देम लेट टू स्कूल. और यहाँ वंडा का इंतज़ार कर रही थी वो एक जगह पर दोनों लड़कियाँ. और जब इंतज़ार करने के बावजूद भी वंडा वहाँ पर नहीं पहुँची तो इस कारण से वो स्कूल पहुँचने में पैगी और मैडी दोनों लेट हो गई. That waited and waited for Wanda. पैगी और मैडी दोनों वंडा के आने की प्रतीक्षा करती रहीं. To have come to have some fun with her
एंड शी जस्ट हैडंट कम, कि वो आएगी और उसके साथ कुछ मजाक मस्ती, कुछ मौज वगैरह वो करेंगे। एंड शी जस्ट हैडंट कम, और कुछ समय बाद मालूम पड़ा कि वो निश्चित रूप से वेंडा स्कूल आज भी नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोस्की टू हैव फन विद हर। वो अक्सर इंतज़ार करती थी वेंडा पेट्रोस्की के लिए, जिससे कि पैगी और मैडी दोनों उसके साथ मजाक कर सकें। आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे। Rest of the chapter will be taken in the next lecture. Till then, goodbye. Take care of yourself. Thank you.